یہ ٹیوشن سینٹر کس قسم کی عمارت میں قائم تھا اور چھت گرنے کی وجہ جو ہے وہ معلوم تو ہو گئی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ زخمی ہونے والے بچوں اور افراد کو اسپتال منتقل کر دیا ہے اور مزید وہاں پہ کوئی اپڈیٹس آ رہی ہیں، والدین موجود ہیں اور ان کا کیا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے؟ جی بالکل، والدین ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے گھروں کو گئے ہیں. اپنے معصوم بچوں کو جیسے ہی انہوں نے زندہ دیکھا وہ خوشی سے نہال ہو گئے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ زندہ سلامت ہمیں مل گئے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ بھی اپنے والدین سے لپٹ کے، مائیں جو تھیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے لپٹ گئیں اور اللہ پاک کا شکریہ ادا جو ہے وہ کرنے لگیں. ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور یہ 60 سے 70 جانیں تھیں جو 7 سے 8 گھنٹے تک اندر پھنسی رہیں، اندر موجود رہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں رہیں. بعد ازاں جو چھت کا ملبہ گلی میں گرا تھا اس کو کلیئر کیا گیا. جو صاف ستھرا پنجاب کی ٹیمیں ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں ہیں، انہوں نے اس کو کلیئر کیا اور اس کے بعد بچوں کو جو ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے کے بعد یہاں پر نکالا گیا. اور یہ جو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ یہ 2 منزلہ عمارت ایک انتہائی خستہ بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی تھی. وہ جو دیوار تھی وہ انتہائی خستہ تھی، جس کے اوپر جو ہے وہ اسکول کی ایکسٹینشن کی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن سینٹر میں بچوں کو پڑھایا بھی جا رہا تھا. اور ٹیچر بھی یہاں پر موجود تھی جو بچوں کو پڑھا رہی تھی. اور یہ انتہائی جو ہے وہ المیہ ہے، ٹھیکیدار کی انتہائی غفلت ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک جو ہے وہ واقعہ پیش آیا. ایک معصوم جان جو ہے وہ گئی ہے اور 2 معصوم بچے زخمی ہوئے ہیں. 4 جو ہے وہ مزدور اس میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جو کہ لینٹر کھول رہے تھے، اور ٹھیکیدار کو جو ہے وہ تاحال نہیں پکڑا گیا. وہ یہاں سے مفرور ہو گیا ہے. اور اس حوالے سے پولیس سے کہنا ہے کہ واقعی قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. قانونی کارروائی اہل خانہ کی طرف سے جس کا بچہ جاں بحق ہوا ہے اس کا یہ کہنا ہے، امین کا، کہ مجھے انصاف چاہیے، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. یہ اسکول انتظامیہ اور ٹھیکیدار کی غفلت کی وجہ سے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا، اس کی وجہ سے میرے معصوم بچے کی جان گئی ہے. اور جو امین تھا وہ یہاں جو ہے وہ غم سے نڈال ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ موقع پر پہنچیں اور اس کو جو ہے وہ طبی امداد دی گئی اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا. امین کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بھی جو ہے وہ غم سے نڈال ہو گیا جب ہسپتال سے اس کو کال آئی کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، اس کی جو ہے وہ اس حادثے میں اس دنیا میں نہیں رہا. تو وہ یہ کال سنتے ہی موقع پر موجود تھا یہاں پر اور وہ بے ہوش ہو گیا. اور اس کے بعد اس کو طبی امداد دی گئی، اس کے چھوٹے بھائی کو بھی طبی امداد دی گئی، دونوں کو طبی امداد دے کر جو ہے گھر منتقل کیا گیا. اور یہ حالات ہیں یہاں پر، یہ مناظر ہیں انتہائی افسوسناک ہیں. ایک جو فیملی کی دنیا اجڑ گئی ہے اور باقی جو زخمی ہیں ان کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے. اور اب میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں پر اب ملبے کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو تمام زخمی ہیں ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اب اسکول انتظامیہ کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے، اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے، قانون کے مطابق کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. جو بچہ ہلاک ہوا ہے ان کی طرف سے درخواست جیسے ہی موصول ہوگی اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یہ 2 روز میں دیکھا جائے تو لاہور میں یہ انتہائی جو ہے وہ بڑے بچوں کے حوالے سے واقعات پیش آئے ہیں. ٹیوشن سینٹر نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورے لاہور میں جو ہے وہ کھولے گئے ہیں، چھوٹی عمارتوں میں کھولے گئے ہیں اور خستہ حال عمارتوں میں کھولے گئے ہیں. اور کیونکہ یہ مونسون کا سیزن شروع ہو گیا ہے، گزشتہ رات جو ہے وہ بڑی بارش ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے یہ جو عمارت تھی وہ گیلی ہو گئی. اور اسی بجائے اس کے کہ ٹھیکیدار 2-3 دن انتظار کرتا، جب یہ سوکھ جاتی تو تب اس کو کھولتا، اس نے اس کا انتظار کیے بغیر اس عمارت کو کھولا، جس کی نتیجے میں جو بچے تھے وہ بھی اندر پھنسے رہے. ایک معصوم بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہوا اور عمارت بھی زوردار دھماکے سے نیچے گری. اب جو ٹھیکیدار جو تھا وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے اور اسکول انتظامیہ کے خلاف پولیس سے کہنا ہے کہ قانونی کارروائی کی جائے گی اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا. اب جو زخمی ہیں ان کا اسپتال میں علاج جاری ہے. زخمی جو بچوں کی عمر ہے وہ بھی 8 سال ہے، کچھ بچوں کی 10 سال ہے، کچھ 12 سال ہے. اور جو بچے نکالے گئے ہیں جن کے جو 60 سے 70 جس میں معصوم بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں، ان کی عمریں جو ہیں وہ بھی کسی بچے کی عمر 12 سال ہے، کسی کی 10 سال ہے، کسی کی 15 سال ہے. اسی طرح 8 سے 10 سال کے جو بچے ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور جو والدین ہیں وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے جو ہے یہاں پر باہر موجود رہے
जब तक उनके बच्चे बाहर नहीं आए तब तक जो है वो दुआएं करते रहे, और यहाँ पर उनकी आंखों में मुसलसल हमने यहाँ पर आंसू देखे। वो परेशान थे और अपने प्यारे बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे कब जो है वो उनके सामने आए। जैसे ही बच्चे जो है वो सामने आए, माएँ जो है वो अपने बच्चों से लिपट गई, बच्चे भी अपने माओं से जो है। ठीक है मुदस्सिर हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल का, जो कि इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा ज़ख्मियों की क्या सिचुएशन है इस वक्त, और अस्पताल में क्या इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है या नहीं? जी बिल्कुल, चूँकि जो ज़ख्मी है वो सिर्फ 4 हैं, तो इस हवाले से जो तमाम तर जो इंतजामात हैं वो एमरजेंसी में मुकम्मल है, और इन चारों मरीजों का जो इलाज मुआवजा है वो शुरू कर दिया गया है। और जो एक छोटा बच्चा था वो डेड रिसीव हुआ था, और उसको डेथ सर्टिफिकेट बनाने के बाद उनको जो है वो अस्पताल से जो है भिजवा दिया गया है। बकाए इस वक्त एक जो जख्मी था वो शालामार अस्पताल में था, 7 साला शयान नदीम के नाम से, और वो भी मामूली जख्मी था। फिर उनको शालामार अस्पताल में ही तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4 जो मरीज यहाँ पे ज़ेर इलाज है, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अब उनके जो है मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं वो करवाए जा रहे हैं। अब उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद फिर इनका मजीद आगे जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जाएगा, और डॉक्टर्स ने उनको जो फर्स्ट एड है फौरी तौर पे जो उनको पेन किलर्स हैं और जो अद्वियात है वो देना शुरू कर दिया, ताकि इनको जो है वो किसी किस्म की जो पेन है उसका सामना ना करना पड़े। अभी जैसे ही रिपोर्ट्स मजीद सामने आएंगे तो फिर जो फ्रैक्चर होगा उसी से के हिसाब से फिर इनके जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। और जिन जो जख्मी है जिनको सर पे चोटें आई हैं, इनको बैंडेज वगैरह भी कर दिए गए हैं। तो इस वक्त इन चारों को सर्जिकल अस्पताल की जो सर्जिकल इमरजेंसी है यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे इनका जो इलाज मुआवजा वो किया जा रहा है। और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी के जो डॉक्टर्स हैं वो दोनों वहाँ पे मौजूद है, उनकी टीमें, और वो इन चारों जो जख्मी है उनका इलाज मुआवजा कर रहे हैं। जी ठीक है बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं मुदस्सिर हुसैन का। मुदस्सिर, ये बताइएगा कि अभी अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें तो ये दावे किए गए थे कि लाहौर के अंदर जितने भी मुदस्सिर हुसैन से रबता बहाल किया जा रहा है। आपको एक मरतबा फिर से इस हवाले से अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान मिंट दारोगा वाला के करीब ज़ेर तमीर मकान की छत गिरी थी, जबकि छत के मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ भाग हुआ था, और इमारत में बच्चों के लिए समर कैंप लगाया गया था। मुबैना तौर पर ये इत्तिलात हैं कि गिरने वाली स्कूल की इमारत थी जिसके अंदर बच्चों के लिए समर कैंप लगाया गया था। 10 से ज़ायद बच्चों को इमारत से ज़िंदा निकाल लिया गया है। पाकिस्तान मिंट दारोगा वाला के करीब ज़ेर तमीर मकान की छत गिरी है। जाँ भाग होने वाले बच्चे की लाश जो है उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि जो बच्चा जिसकी डेथ हो चुकी है उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बना दिया गया है। इसके अलावा 4 बच्चे हैं जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, जिनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। ताहम मज़ीद एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की जो है एक्सरे और जो दीगर टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि कोई हेड इंजरी या कोई और जो एक ख़तरनाक इंजरी वो उनको ना हुई हो। इस हवाले से आपको बताते चलें कि छत के मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ भाग होने वाले बच्चे की शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई है। जाँ भाग होने वाले बच्चे की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जाँ भाग होने वाले बच्चे का वालिद गम से बेहोश हो गया है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। ज़ैन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जितनी मखदूश इमारतें हैं इनकी जो इंस्पेक्शन है या इनको जो है लॉक करना है वो किस इदारे की जिम्मेदारी है, और इतनी गफलत क्यों बढ़ती जा रही है? देखें जी, अभी मॉनसून का आगाज हुआ है तो लाहौर में जो मखदूश इमारतें हैं और जो मखदूश छतें हैं उनके गिरने के वाकयात रूनुमा होना शुरू हो चुके हैं, और 72 घंटों के दौरान ये तीसरा वाकया रूनुमा हुआ है कि एक जो घर की छत है वो मुबैना तौर पर नीचे आन गिरी, जो कि इस अमर की गुमाजी कर रहा है कि लाहौर में जो मखदूज छतें हैं वो इस वक्त किसी एक बड़े सानहे की मजीद जो नवीद है वो सुना रही हैं और मुनादी कर रही हैं कि इनको फिलफोड़ कराया जाए। ये सानहे खाने का एक्शन रिप्ले दोबारा आज लाहौर के। ठीक है ज़ैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपने देखने वालों को एक मरतबा फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान मिंट दारोगा वाला के करीब ज़ेर तामीर
तामीर मकान की छत गिर गई है। छत के मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त अब्बू बकर के नाम से हुई। जाँ बहक होने वाले बच्चे की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक होने वाले बच्चे का वालिद गम से बेहोश हो गया। जख्मियों में 35 साला नदीम, 38 साला शकील, 32 साला फैज़ अहमद और 42 साला वसीम शामिल। तमाम जख्मी अफराद को शालीमार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुबैना तौर पर गिरने वाली स्कूल की इमारत है। इमारत में बच्चों के लिए समर कैंप लगाया गया था। 10 से ज़ायद बच्चों को इमारत से जिंदा निकाल लिया गया है। हादसे की जगह पर रिक्कत आमेज मनाजिर हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले भी एक वाक़या जो था वो रूनुमा हुआ था काहना के इलाके के अंदर। से लेकर अब तक जब इसका क़याम हुआ, कौमी पैगाम अमन कमेटी ने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज माशरे क्या है, फितना खवारिज क्या है और फितना हिंदुस्तान क्या है, ये एक एक बच्चे के जहन में, दिमाग में, ज़ुबान पर है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के हमारे मुल्क भर के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनमें दाईं तरफ से मैं गुजारिश करूंगा इंजीनियर उस्मान साहब, मुफ्ती उस्मान साहब जामिअतुर रशीद से, मौलाना आदिल अत्तारी साहब दावत इस्लामी पाकिस्तान से, कंजुल मदारिस, इसी तरह डॉक्टर आसम मीर साहब हमारे मिनहाजुल कुरान से और निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान से, मौलाना सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी अमीर मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस, अभी हमारे जो एक मेंबर भी हैं, सूबे में मिनिस्टर भी हैं, जनाब अरोड़ा साहब, वो भी पहुंचने वाले हैं। ख्वाजा साहब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मैं आपका खादिम मौजूद हूँ। अल्लामा आरिफ हुसैन वादी साहब जो कि नायब सदर हैं शिया उलमा कौंसिल के, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, सब आप हजरात जानते हैं इदारा मिनहाजुल हुसैन से, मुफ्ती मोहम्मद करीम ख़ान साहब ये वफाकुल मदारस अल इस्लामिया रिज़विया के सरबराह हैं, मौलाना यूसुफ कश्मीरी साहब इत्तेहादुल मदारस अल इस्लामिया कराची से तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना अनवारुल हक साहब कोयटा बलूचिस्तान से, मौलाना जाहिद कासमी साहब फैसलाबाद से, मौलाना ज़ुबैर फ़हीम साहब उकाड़ा से हैं, हमारी मेंबर हैं, इत्तेहादुल मदारस के सरबराह हैं, मौलाना जाहिद मंसूर साहब वफाकुल मदारस वल जामियात दीनिया पाकिस्तान से, मौलाना मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब बहावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं। इनका अपना एक मदारस का जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। हमारे रमेश भाई हिंदुस्तान अपना हिंदू कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे सरदार साहब मारूफ आदमी हैं हमारे लाहौर में, और पंडित साहब को तो तमाम हजरात आप जानते हैं। अल्लामा तौक़ीर अब्बास साहब लाहौर से हैं, जामिअतुल जो है उर्वतुल उस्क़ा से। अल्लामा सलमान नकवी साहब भी हमारे लाहौर से पंजाब के मेंबर हैं। उसामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी को भी आप सब हजरात जानते हैं, और हाफिज़ मकबूल साहब हमारे पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं कौमी पैगाम अमन कमेटी जो हुकूमत पंजाब ने नोटिफाई की है। कौमी पैगाम अमन कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर से लेकर अब तक जितने भी मामलात आए हैं उसमें पूरी कौम को आप हजरात के ज़रिए भी, अपनी मसाजिद महराब व मिंबर के ज़रिए भी एक मुत्तफ़िक़ा बयानिया दिया है। और आपने देखा कि पहली बार हुआ कि खुतबात जुमा का एक मौजू का इंतखाब हुआ जिनमें मुल्क की अक्सरियत मसाजिद में फिर उसी पर बातचीत हुई। वो इसलिए कि 22,000 मदारिस इन हजरात के साथ मुंसलिक हैं। मुल्क के अंदर 15 मदारिस के बोर्ड हैं, जिनमें से 11 से 12 मदारिस के ज़िम्मेदार इस वक्त आपके पास मौजूद हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी का दौरा लाहौर जो है उसका आगाज़ परसों शाम से हुआ था। कल हमने वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात की है, उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट मिल जाएंगी। और भी दीगर ज़िम्मेदारान से कल सूबाई सेक्रेटेरिएट में महकमा दाखिला पंजाब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पुलिस, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई, उनके साथ भी तबादला ख्याल हुआ। आज भी
कुछ ज़िम्मेदारान के साथ हमारी मुलाकात हुई और अब से थोड़ी देर पहले जो इत्तेहाद, यकजहती और वहदत का नमूना जामिया अशरफिया लाहौर के अंदर तमाम मज़ाहिब और मकातिब के कायदीन का इस्तकबाल किया गया। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इदारा मिनहाजुल हुसैन, मिनहाजुल कुरान, इन हजरात ने और जामियातुर रशीद कराची ने इन तमाम हजरात को दावत दी है कि आप इसी तरह मुख्तलिफ मसालिक और मज़ाहिब के कायदीन हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हत्ता कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो कि कुछ उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जामियातुर रशीद में और बाकी जगहों में भी, आज जैसे जामिया अशरफिया में हुआ है, मेरे एक तरफ मेरा मसीही भाई बैठा हो, दूसरी तरफ मेरा हिंदू भाई बैठा हो, एक तरफ शिया बैठा हो, दूसरी तरफ सुन्नी बैठा हो, ताकि ये पाकिस्तान, इसकी असल असास जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मकसद ही हमारे साथ जो गैर मुस्लिम हमारे भाई शामिल हुए थे पाकिस्तान में, वो ये जानते थे कि इस्लाम ही उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से, इस हवाले से कौमी पैगाम अमन कमेटी को अल्लाह ने ये कामयाबी दी है कि मुल्क के अंदर अभी मुहर्रमुल हराम में आपने देखा कि जुमे का दिन था, एक मुश्किल दिन था इस एतबार से कि एक तरफ जुलूस और दूसरी तरफ जुमा, लेकिन मैं आपके ज़रिए उन तमाम ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, मजालिस के सरबराहों, मसाजिद के अइम्मा, खुतबा और इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी बात मानी, ख़ाहिश साहब की बात मानी, इन अकाबरीन की बात मानी। किसी ने अपना जुमा पहले किया, किसी ने अपना जुलूस रोका, और मुल्क में एक शिकायत नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकें कि कहीं पर कोई तसादुम की कैफियत आई। मुहर्रमुल हराम के दौरान अगर मैं ये दावा करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त होगा कि 1% से भी कम शिकायत मौसूल हुई, जिनमें ज़्यादा सोशल मीडिया से मुत्तसिल हैं और उसके ऊपर मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। हम ये बात बड़ी वाज़ेह कहना चाहते हैं तमाम अकाबरीन की मौजूदगी में, और इंशाअल्लाह ये भी जब आपसे बात करेंगे तो इस बात को आपके सामने रखेंगे कि मुल्क का कानून और ज़ाब्ता इखलाक पैगाम पाकिस्तान, उससे किसी को इधर उधर नहीं होने दिया जाएगा। हमारा ये वादा है अपनी कौम के साथ और सबसे पहले अपने अल्लाह के साथ कि इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना, रवादारी का गहवारा बनाना हमारी जिम्मेदारी है, मेहराब व मिंबर के वारसों की जिम्मेदारी है। और वो फसाद फैलाने वाला, वो मेरे मसलक का हो, वो मेरी जमात का हो, वो वादी साहब के मसलक का हो, वो शाह साहब की जमात का हो, वो अत्तारी साहब की, जो भी करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, कानून उसके खिलाफ हरकत में आएगा। लिहाजा मैंने अपनी जो मुख्तसर सी गुजारिश थी वो कर दी। उसके बाद हमारे ये साथी 2-2 मिनट आपसे बात करेंगे, आखिर में ख़ाहिश साहब बात करेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम इकट्ठे चाय पिएंगे। मैं अल्लामा आरिफ वादी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो 2 मिनट में आपसे अपनी बात को मुख्तसर अल्फाज में बयान करें। मीडिया के शुक्रगुज़ार हैं इस गर्मी में मुस्तफ़ी से टाइम निकाल कर तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ कि जो नेशनल पैगाम